It's been more than 4.5 years and I'm doing marketing consistently to sell my products, my services, high ticket, low ticket, mid ticket, direct response marketing, branding marketing, multiple चीज़ें ट्राई कर रखी हैं। एंड इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ आपके साथ शेयर 4 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो कि आपको हेल्प करेगा टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स इन योर बिजनेस। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, मैंने इस साल 2024 में 35,000 से प्लस लीड्स जनरेट कर रखे हैं थ्रू ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग। एंड आई विल बी शेयरिंग विद द कोर एडवाइस जिसने मुझे हेल्प किया टू जनरेट दिस नंबर ऑफ लीड्स फॉर माय बिजनेस एंड यू कैन डू सेम फॉर योरसेल्फ। Hi guys, my name is Sidhu Upadhyay. I run a coaching and consulting company by the name Level Up. We help online business like you to help you to generate high quality leads in your business. So let's get started. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में ये है कि मैं एक बढ़िया प्रोडक्ट या फिर बढ़िया सर्विसेज एक बार क्रिएट कर दूं and people will automatically buy my product, people will automatically buy my services. But let me tell you this right now, it is not true. ऐसा नहीं होने वाला कि आपने एक बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, एक बढ़िया सर्विस बना दिया and लोग ऑटोमेटिकली आएंगे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करने के लिए। You need to do something, you need to do some marketing activity so that people will get to know about you, people will get to know about your product, people will get to know about your services or whatever you are selling in the market. See, आप जब मार्केटिंग नहीं करते हो ना, ये कुछ आपका ऐसा होता है। सपोज करते दैट कि आप एक गांव के अंदर में हो, गांव के अंदर में 100 लोग कंप्लीटली बीमार है एंड आप वो डॉक्टर हो, बट मार्केट में पूरे गांव में किसी को ये पता नहीं दैट यू आर अ डॉक्टर। तो क्या कोई भी आपके पास में आएगा टू बाय योर प्रोडक्ट, टू बाय सर्विसेज? द आंसर इज नो। मतलब कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की डिमांड है। पीपल डू वांट टू buy your product, people do want to buy services, but you are doing nothing to let them know that you exist, your product exists, your solution exists, because you are not doing any kind of marketing and because of which you are not getting high quality leads. So let's understand how can you get high quality leads by following 10 advice of marketing. मेरा प्रॉमिस आज का यहाँ पर ये दैट कि I will give you 10 marketing advice जिसने मुझे हेल्प किया to generate 30,000 plus leads in less than 1 year in my business. And guys, ये proof है 21,000 plus leads हमने generate करी last year 2023 में and 35,000 से plus leads हमने generate करी बेसिकली हमारे business के लिए completely इस साल में। मतलब कि कम से कम 55,000 से plus leads हमने generate करी in less than proper 2 year. And वो कौन से strategy मैंने follow करी I will be telling you in this video. So guys, advice number 1 हमारे यहाँ पर होता है learn about marketing. I mean, I have seen a lot of people who are going to provide marketing services, but they don't know anything about the marketing. I mean, how? अगर आपने बस सीख लिया how to run Facebook ads, अगर आपने सीख लिया how to run basically Google ads, and you are like किसी बस मुझे यहाँ पे बताया that कि कहाँ पे क्लिक करना होता है, and you don't understand the customer behavior, you don't understand कि क्या funnel उनके लिए follow करना है, you don't understand the core and basic principles of marketing. I mean, you won't be able to run your ads, you won't be able to get the good output in the market. Simple. तो इसलिए एडवाइस नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये आती है that you learn about the marketing first. Simple. तो guys, mostly people don't even have an idea about what marketing is and what is the purpose of doing it. What is marketing and direct response marketing क्या होती है and branding marketing होती क्या है? तो पहले राइट नाउ हम लोग बात कर लेते हैं what is the meaning of marketing and what is marketing. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में guys बोलूँ, मार्केटिंग का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि दैट यू हैव अ मैसेज एंड वो मैसेज आपके लोगों तक, आपके उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। जब ये मैसेज इस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता है तो ये कुछ एक्टिविटी करते हैं। मे बी दे विल डू सम काइंड ऑफ CTA, मतलब कि कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे, और या फिर उनके माइंड में कंप्लीट कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस हो रही है समहाउ इंटरनली, एंड बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं इंटरनल एंड बिकॉज ऑफ विच इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। तो मार्केटिंग का सिंपल मतलब यहाँ पर कि मैसेज है वो आपके राइट काइंड ऑफ ऑडियंस तक पहुंच रहा है एंड यू आर आस्किंग देम to do CTA, or maybe you are not asking them to any kind of CTA. Okay, the purpose of marketing is to create awareness on the market. The purpose of marketing is to create awareness about the product and services you are selling, and the purpose of marketing is to generate leads, and also the purpose of marketing is to build trust in the market. Simple. तो purpose completely आपका यहाँ पर ये marketing का simple मतलब यहाँ पर है कि आपका वो मैसेज आपके ऑडियंस तक डायरेक्टली मैच हो रहा है and you are asking them to do some kind of CTA, or maybe you are not asking them to do some kind of CTA. You're just showing your message ताकि लॉन्गर रन तक आपका वो रिकॉल वैल्यू कंप्लीटली बना रहे। सिंपल। तो गाइस, हमारे 2 टाइप के प्रॉपर समूह मार्केटिंग होते हैं। एक हमारा होता है ब्रांडिंग मार्केटिंग और एक प्रॉपर हमारा होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि ये ब्रांडिंग मार्केटिंग में और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? तो गाइस, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है जहां पे प्रॉपर आपका कॉल टू एक्शन होता है। आपने जो भी ऐड देख रखी है फेसबुक पे, क्लिक हियर, रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप राइट नाउ, इवन अगर आपने कभी हमारी ऐड देखी है, इट कम्स इनटू, तो वो हमारी आती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अंदर में। बट कभी अगर आपने टीवी पे ऐड देखा है कोका कोला का, कैडबरी का,
वहां पे कोई CTA प्रॉपर नहीं होता, वहां पे बस वो प्रॉपर ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को कंप्लीटली इंक्रीज कर रहे होते हैं, एंड वहां पे कोई CTA नहीं है. इट इज नोन एज अ ब्रांडिंग मार्केटिंग फॉर श्योर. ओके, जो हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होता है वो होता है कन्वर्जन पर्पस, मतलब कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज, वहां पे हमारे कन्वर्जन होते हैं कि CPL कितना जाएगा, हमारा क्या कितना जाएगा, हमारा लैंडिंग पेज व्यूज कितना प्रॉपर जाने वाला है, और वहां पे हम कन्वर्जन हमारा पर्पस रखते हैं दैट कि वी नीड टू ट्रैक एवरी सिंगल मैट्रिक्स फ्रॉम आवर. लेकिन जब हम ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रहे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बस चाहते हैं दैट कि ब्रांड हमारा बिल्ड हो और वो रिकॉल वैल्यू कंप्लीटली हमारी धीरे धीरे और बिल्ड होना चालू हो. सिंपल. हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 3. जब भी आप मार्केटिंग कर रहे होते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियली आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग से स्टार्ट करोगे, ना कि आप ब्रांडिंग मार्केटिंग से. मतलब इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग. जब आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा होने लगता है दैट कि यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑन बिलबोर्ड, यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज ऑन मे बी टीवी कंप्लीटली, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू यूज द ब्रांडिंग मार्केटिंग. ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, 99% of you should use direct response marketing until you touch 5, 10, 15, 20 lakh a month completely in your product or a service business. Simple. And guys, branding marketing हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं जब कंप्लीटली हमको प्रॉपर स्केल करना होता है. तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अंदर में यू शूट योर ओन एड्स. आप बेसिकली प्रॉपर अपने खुद की एड शूट करते हो एंड यू एक्चुअली रन एड्स ऑन दोज वीडियोस. बट ब्रांडिंग मार्केटिंग के अंदर में गाइस आपको लोग जानते इतना नहीं है. तो अगर आप 2-3 करोड़ रुपए ले रहे हो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग, सिंपल. ओके, तो यू वांट समबडी की जिसका फेस लोगों को प्रॉपर पता हो. एग्जांपल में शाहरुख खान, विराट कोहली, ऑब्वियसली बात है वो बहुत महंगे, बट कोई भी जो छोटे मोटे सुपरस्टार या फिर जो भी न्यू सुपरस्टार कंप्लीटली प्रॉपर आ रहा है, क्रिकेटर आ रहे हैं, ओके, सस्ते में यू कैन साइन देम कंप्लीटली एंड आप उनके फेस को लेकर प्रॉपर ब्रांडिंग मार्केटिंग आराम से कर सकते हो. सी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आप उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते, बट जैसे ही उस प्रोडक्ट के साथ में वो फेस अटैच होता है विराट कोहली का, आप विराट कोहली पे ट्रस्ट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट पे कंप्लीटली ट्रस्ट करना चालू कर देते हो. बिकॉज आपको ये लगता है कि यार मैं वो हार्डवर्क नहीं करने वाला टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है प्रॉपर या फिर नहीं है. आपको लगता है यहाँ पर कि यार विराट कोहली बोल रहे हैं तो प्रॉपर अच्छा होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच पीपल एक्चुअली बाय दोस प्रोडक्ट. Hope you got the point. Here comes our point number 5. Track output. डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में आप आउटपुट को ट्रैक कर सकते हो. मैंने 50,000 रुपए लगाए ऐड पे, मेरे कितने CPL आए, मेरे कितने प्रॉपर लीड्स आए, मेरे कितना कंप्लीटली कन्वर्जन हुआ. ब्रांडिंग मार्केटिंग वाले पार्ट में यू कैन नॉट ट्रैक आउटपुट. आप नहीं देख सकते कि यार इस ऐड को देख के कितने लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया कंप्लीटली. आप एक तरीके से बैठ ले रहे हो कि यार ये हम ऐड रन कर रहे हैं, शायद ये प्रॉपर लोग ऐड देखेंगे और शायद उनके माइंड में ब्रांड वैल्यू होगा एंड शायद वो लोग फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को कंप्लीटली बाय करने वाले. सिंपल. इनिशियली आपके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग जरूरी है एंड बहुत बाद में आपके जर्नी में मे बी यू गाइस विल गोना डू ब्रांडिंग मार्केटिंग इन योर बिजनेस. तो अगर यही चीज हमारी है एडवाइस नंबर 1 दैट यू लर्न अबाउट मार्केटिंग. जितने राइट नाउ मार्केटिंग के प्रॉपर बुक्स है मार्केटिंग कंप्लीटली, उसको स्टार्ट करो प्रॉपर रीड करना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ विद योर कैंपेन. हियर कम्स आवर गाइस एडवाइस नंबर 2 व्हिच इज की 3 आवर मार्केटिंग एक्टिविटी डेली एंड कंसिस्टेंटली. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक. पहली चीज या तो मार्केटिंग करेंगे नहीं, दूसरी चीज अगर मार्केटिंग करेंगे तो बहुत कम टाइम के लिए करने वाले हैं. ओके, उनको लगता है कि यार ये एक हफ्ते कर लिया, जितनी लीड्स आ रखी है पूरे मंथ में बैठ के उनको प्रॉपर क्लोज करने वाले. द आंसर इज नो. मार्केटिंग की एक्टिविटी इट शुड हैपन डेली एंड कंसिस्टेंटली. आप सिंपल एक बात बताओ, आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी बात है जो एब्सोल्युटली सच हो जाए, यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस लाइक क्रेजी. एंड योर आंसर इज सिड. बहुत सारे लीड्स आ गए. तो अगर लीड्स पे ही आपका बिजनेस पूरा प्रॉपर डिपेंड है, देन व्हाई द हेल आर यू नॉट डूइंग 3 आवर्स मार्केटिंग एक्टिविटी डेली एंड कंसिस्टेंटली. ये आपका टाइम पीरियड एब्सोल्युटली फिक्स होना चाहिए कि सुबह के 10 से 1, रात के 7 से 10, जो भी प्रॉपर कंप्लीट आपका टाइम फ्रेम, उस टाइम पे आपको प्रॉपर 3 घंटे की मार्केटिंग एक्टिविटी करनी होती है. अब यू आर लाइक कि सर मार्केटिंग एक्टिविटी क्या करूं 3 घंटे के अंदर में? यार सिंपल 4 प्रॉपर होता है. इधर यू डू रीच आउट, इधर यू डू कंटेंट, इधर यू रन एड्स, इधर यू डू कोलैबोरेशन, इधर यू डू वार्म रीच आउट. सिंपल. इनमें से कोई भी कंपल ऑफ चीज कंप्लीट पकड़ो एंड यू स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग कंप्लीटली फ्रॉम योर साइड. बट द पॉइंट इज इट शुड हैपन डेली एंड इट शुड हैपन एब्सोल्युटली कंसिस्टेंटली. एडवाइस नंबर 2. एंड हियर कम्स आवर एडवाइस नंबर 3 व्हिच इज की मेजर द मैट्रिक्स ऑफ मार्केटिंग. गाइस एक बहुत सारा क्यूट है दैट इज की व्हाटएवर गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड. जो भी चीज आप मेजर करते हो वो चीज आप इंप्रूव कर सकते हो. इफ यू आर नॉट मेजरिंग समथिंग यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव दोस थिंग्स. तो आपके मार्केटिंग वाले पार्ट के अंदर में आपका CPL, आपका कैक, आपका लैंडिंग पेज व्यूज, आपका ट्रैफिक, आपका LTV, ये सारी चीजें कंप्लीटली आपके सही से ट्रैक होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओ आपके आने वाले टाइम पे. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि लाखों रुपए स्पेंड करते हैं मार्केटिंग पे, बट व्हेन
I talk to them and I ask them about the LTV, about the CAC, about the CPL or the traffic or the landing page views, they do not have any idea. They are like, इस वक्त इतने नंबर ऑफ लीड्स आते हैं और इतना कंवर्जन होता है और 2x हम प्रॉपर रिवेन्यू करते हैं. आई मीन लाइक बॉस नहीं, यू शुड नो ऑल द मैट्रिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड आप उसको सही से ट्रैक कर रहे हो. और ये ट्रैक करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब तक वो डाटा आपके पास नहीं रहेगा यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बॉस मुझे नेक्स्ट स्टेप प्रॉपर क्या करना है. एग्जांपल के लिए कि लेट्स सपोज दैट कि आपका सीपीएल बढ़ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता कि सीपीएल क्यों बढ़ रहा है क्योंकि वो डाटा नहीं है. बट व्हेन यू कैन सी डाटा कि यार लैंडिंग पेज व्यूज ही नहीं हो रहे इतने, मतलब कि जो हमारा ऐड है, ऐड देख के लोग क्लिक नहीं कर रहे यार, हमारे इतने क्लिक्स ही प्रॉपर नहीं आ पा रहे. अच्छा, लोग लैंडिंग पेज पे तो प्रॉपर कंप्लीटली आ रहे हैं बट वो लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में साइन अप नहीं कर रहे हैं, हमारे वर्कशॉप में साइन अप नहीं कर रहे हैं, हमारे लीड मैग्नेट को प्रॉपर वो साइन अप नहीं कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम इज ऑन द लैंडिंग पेज. तो उसको कंप्लीटली आपको कॉपीज के थ्रू इंप्रूव करना पड़ेगा. सिंपल, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. एंड जब तक वो मेजरमेंट नहीं करोगे प्रॉपर, जब तक वो मैट्रिक्स नहीं रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव योर मार्केटिंग. दिस इज गाइस एडवाइस नंबर 3. एंड हियर कम्स आवर एडवाइस नंबर 4, जो कि है मैसेज टू मार्केट शुड मैच. यू नीड टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक मार्केट प्रॉब्लम एंड देयर डिजायर. ठीक है, आपकी एक टारगेट ऑडियंस है और आप यहाँ पे आपका एक मार्केट मैसेज है. जो ये मार्केट का मैसेज है ये इस टारगेट ऑडियंस तक कंप्लीटली पहुंचना चाहिए, नंबर 1, और ये लोग उस मैसेज से रिलेट कर पाए. सपोज करो गाइस यू आर समबडी हु इज हेल्पिंग पीपल टू लूज वेट, बट जो आप अपनी बातें बोल रहे हो ऐड में, उस बातों से जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो रिलेट नहीं कर पा रहे, वो बातें देखकर वो ये नहीं सोच पा रहे कि आप उनकी बात कर रहे हो. अगर आपका जो मैसेज है वो मार्केट से मैच नहीं हो रहा है तो बॉस आपकी मार्केटिंग किसी काम नहीं कर रही है. आपका जो मैसेज है वो मार्केट से कंप्लीटली मैच होना चाहिए. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक लॉन्च किया था मेरा फनल एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द फनल, जैसी बात है, ओके. बट द पॉइंट इज दैट कि मैंने उस पर कम से कम 2 लाख रुपए लगाए थे एंड द ओनली प्रॉब्लम वाज द मैसेज टू मार्केट वाज नॉट मैच. मतलब वो चीज मैच नहीं कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग लाइक यार प्रॉब्लम क्या है, ऐड भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है. देन एट द एंड में आई गॉट टू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पीपल रिप्लाई, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सम मैट्रिक्स कि यार प्रॉब्लम हमारा है, हमारा मैसेज जो है कंप्लीटली वो हमारे मार्केट से कंप्लीटली प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है. मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ और जो मेरे ऑडियंस के पास तक चीजें जा रही हैं वो चीजें कंप्लीटली मैच करनी चाहिए. मतलब कि अगर मैं कोई एक्शन दे रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, हे अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आपको जानना है कि आप कैसे हाई टिकट लीड जनरेट करना चाहते हो, आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड करो. ये कितना प्रॉपर डायरेक्ट है. अगर आप एक फ्रीलांसर बना दो, व्हाट इफ आई से समथिंग लाइक दिस कि अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, ओके, देन यू कैन अटेंड माय वर्कशॉप. अब सर्विस गाइस बहुत होता है, घर पे जो आपके बिजली बनाने वाला आ रहा है वो भी प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइडर है. तो कहीं ना कहीं नॉट द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ गाइस, ऑब्वियसली बात है, बट द पॉइंट इज दैट ही गॉट द पॉइंट. मतलब कि वो मैसेज एक क्लियर नहीं है प्रॉपर आपके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग. अगर आप सिर्फ फ्रीलांसर्स को ही बात कर रहे हो तो से द वर्ड फ्रीलांसर अपने वीडियो में. अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहे हो ई-कॉम ओनर्स को तो वो से द वर्ड ई-कॉम ओनर्स अपने ऐड के अंदर में. तब जाके कंपैरेटिव वो लोग बोलेंगे कि ओके मेरे से बात हो रही है, हाँ मेरा प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा सीपीएल बढ़ रहा है, मेरा प्रॉब्लम राइट नाउ आ रहा है कि मेरे रिफंड बहुत ज्यादा हो रहे हैं मेरे ई-कॉमर्स ब्रांड के अंदर में, तो हाउ कैन यू हेल्प मी. क्लिक किया, साइन अप किया, लीड मैग्नेट लिया एंड लेट्स प्रॉपर गो एट सिंपल. होप यू गॉट द पॉइंट. एंड देन हियर कम्स आवर एडवाइस नंबर 5, व्हिच इज गाइस की ऑर्गेनिक वर्सेस पेड मार्केटिंग. बहुत बेसिक है, आपको पता होगा इसके बारे में कि ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत जरूरी होता है आपके बिजनेस के लिए. सो गाइस योर मार्केटिंग यू मेक ऑर्गेनिक फर्स्ट देन यू यूज द सेम मनी टू गो फॉर एड्स. क्या हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स को कि आप इनिशियली जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो या फिर अभी आप अंडर 1 लाख प्ले कर रहे हो बेसिकली, तो आप ऑर्गेनिक एक्टिविटी करो टू गेट सम क्लाइंट, टू गेट सम सेल्स. उसके बाद जब थोड़ा सा कैश आपके बैंक में हो जाए देन यू यूज दैट मनी टू गो फॉर द बेसिकली पेड एडवर्टाइजिंग. सिंपल, ओके. नंबर 2, ऑर्गेनिक ब्रांडिंग विल हेल्प यू टू रिड्यूस कैक. जो आपका ऑर्गेनिक ब्रांडिंग है वो आपको कैक को रिड्यूस करने में हेल्प करने वाला है. कैक क्या होता है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं टू एक्वायर 1 कस्टमर. अगर सपोज करो गाइस कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 के आसपास में है, मैं 5,000 रुपए लगा रहा हूं एक सेल लाने के लिए, मतलब कि मेरा बेसिकली जो प्रॉपर कैक है वो 5,000 के आसपास में. तो ऑर्गेनिक के थ्रू मैं अपने कैक को रिड्यूस कर सकता हूं. डोंट वरी, कैक के बारे में कंप्लीटली अभी हम आगे बात करने वाले हैं. डोंट वरी, ओके. नाउ सो गाइस हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनिक मार्केटिंग विल नर्चर ओल्ड ऑडियंस टू. देखो होता क्या है, जब आप अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग प्रॉपर काम करते हो, व्हेन यू आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं जो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है वो ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू लोग आपके बारे में जान पाते हैं. नंबर 1. नंबर 2, जो आपके बारे में लोग जान पाते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, एंड दे इवेंचुअली दे विल गोना बाय योर प्रोडक्ट. और जो ऑडियंस आपके पास में आ रही है कोल्ड मार्केट से, मतलब कि जो ऑडियंस आपके पास में आ रही है वो एड से आ रही है, और अगर उस ऑडियंस को आप रीडायरेक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स योर ऑर्गेनिक कंटेंट वाला पार्ट, एंड वो लोग अगर आपके ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, देन इसके वजह से
वो जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस को नर्चर करेगा एंड वो कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करेगा इनटू अ वार्म ऑडियंस। तो अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहे हो, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ओके, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो कोल्ड ऑडियंस को नर्चर करेगा इनटू वार्म एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर आपका कैक रिड्यूस कंप्लीटली होगा एंड यू विल बी एबल टू हैव अ हाई कन्वर्जन इन द बिजनेस। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू बोथ द मार्केटिंग। हमेशा दिस वर्सेस दैट नहीं होता कि या तो मैं ये करूं या तो मैं करूं, दोनों ही आपके लिए जरूरी है और यू नीड टू डू बोथ द थिंग्स। अगर आप एक फ्रेशर हो, इफ यू आर मेकिंग अंडर 1 लाख, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर ऑर्गेनिक फर्स्ट। यू हैव सम कैश, जब थोड़ा बहुत कैश जेब में कंप्लीटली हो जाए, देन यू यूज दैट मनी टू गो फॉर द पेड एडवर्टाइजिंग एंड यू डू टेस्ट एंड ट्राई। Simple. Hope right now you got the point. And this was our advice number 5. And guys, now here comes our advice number 6, which is guys ki if no marketing, no sales, no money and no business, marketing is oxygen. Please understand. Sales oxygen नहीं है business का. Okay? आपका marketing oxygen है. यार sales कब होगा? सेल्स तो होगा ही तब जब आपके पास में लीड्स आएंगी। लीड्स कब आएंगी? जब मार्केटिंग प्रॉपर लगातार कंप्लीटली आपकी होंगी। इफ यू आर नॉट डूइंग कंसिस्टेंट मार्केटिंग, you won't be able to get consistent leads. And if you're not getting consistent leads, you are not able to make consistent sales. And if you're not able to make consistent sales, you are not making consistent money. Simple. So you need to do marketing daily. You need to do marketing consistently. अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस कैसा? मजाक चल रहा है फिर तो। सिंपल। तो गाइस एडवाइस सिंपल हमारे यहाँ पर 6 ही है, दैट इज कि मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी उस लाइफ में उस जोन पे जी रहे हो कि बिना मार्केटिंग करे भी आई विल बी एबल टू सेल माई प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट और मेरी सर्विसेज बहुत अच्छी है, वो चीज़ ठीक है, करो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। But the sooner you realize that marketing is the oxygen of the business, if you are not doing daily consistently, your business will die for sure. Advice number 6. And here comes our advice number 7, guys, which is key: provide too much value, let them know, like and trust you. See guys, सोशल मीडिया पे लोग कैसे आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। पहली चीज, सोशल मीडिया पे लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत हार्ड होता है। तो एक जर्नी प्रॉपर लोगों की होती है। फर्स्ट पीपल विल नो यू, then they will like you, then they will trust you, then they will buy from you. लोग वो 4 स्टेज से कंप्लीटली होकर जाते हैं। They will know you first, they will like you then, they will trust you then, and then they will gonna basically buy your product for sure. ऐसा नहीं होने वाला कि किसी पर्सन आपके बारे में जाना और जाते ही आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। वो उस स्टेप से कंप्लीटली होके गुजरेगा for sure, okay? And you need to understand the give and ask ratio. आप मेरी एक बात समझो, अगर आपने कभी कोई भी टीवी पे सीरियल देखा है, नाटक देखा रखा है प्रॉपर आपने, तो वहां पे क्या कभी आपने नोटिस कर रखा है उन्होंने 22 मिनट आपको गिव किया और 8 मिनट दे आर आस्किंग। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप 2 पोस्ट के बाद एक ऐड देखोगे, तो 2 पोस्ट में उन्होंने गिव किया फ्री कंटेंट एंड देन दे आर शोइंग एड्स। अगर मैं बात करूं फेसबुक की, फेसबुक पे भी कंप्लीटली हमारी सेम चीज है। अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, आपने 3 मिनट का वीडियो देखा है एंड देन आपको प्रॉपर क्या दिखेगी? कंप्लीटली एक एड। सिंपल। ये पूरा सोशल मीडिया वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है बिजनेस की, ये गिव एंड आस्क रेशियो पे ही कंप्लीटली काम करती है सोर्स शॉट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द गिव एंड आस्क रेशियो एंड यू नीड टू प्रोवाइड टू मच वैल्यू। अगर अपने सोशल मीडिया पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्रोडक्ट सर्विस, आई मीन व्हाई पीपल शुड फॉलो यू? पीपल विल फॉलो यू बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ ए कंटेंट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू आर गोइंग टू सॉल्व योर कस्टमर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट बिकॉज ऑफ विच दे विल फॉलो यू। तो फिर वहां पे वो लोग कंप्लीटली आपको फॉलो करेंगे एंड देन यू कैन डू प्रमोशन फ्रॉम योर साइड सो दैट यू कैन कन्वर्ट दोस पीपल इनटू योर लीड्स। Hope right now guys completely you got the point. So you need to provide so much value from your side to your customers जो अभी तक आपके कस्टमर बने भी नहीं completely, they are just your audience and आपको value provide करना है तब तक जब तक वो आपके बेसिकली कस्टमर नहीं बन जाते। Simple. This was our advice number 7. And guys, here comes our advice number 8, which is कि LTV और CAC का रेशियो बहुत 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 मैटर करता है। इफ यू आर नॉट ट्रैकिंग द LTV एंड CAC का रेशियो, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल और यू विल गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल। LTV गाइस और CAC होता क्या है? LTV को हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर और CAC को हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। LTV का मतलब यहाँ पर होता है कि एक कस्टमर एक लाइफ टाइम में मुझे कितना बेसिकली पैसा पे करने वाला है, सिंपल ओके। और CAC का मतलब क्या होता है? मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ टू एक्वायर वन कस्टमर। जो LTV का गाइस हमारा फॉर्मूला होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दूं एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन, इट इज गोइंग टू बी माय LTV। तो अगर कोई पर्सन मेरे दुकान पे आके कॉफी पी रहा है और वो पूरे मंथ में $100 पे कर रहा है और $90 इज समथिंग जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है और $10 इज समथिंग जो कि मेरा मेकिंग कॉस्ट कंप्लीटली आ रहा है, तो $90 मल्टीप्लाई बाय 6, $540 इज गोइंग टू बी माय LTV। ये चीज कैलकुलेट करना प्रॉपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं जब मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना
पैसा खर्च कर सकता हूं। तो गाइस अगर मैं एक कस्टमर से 6 मंथ के टाइम पीरियड पे $540 ले रहा हूं, इसका मतलब यहां पर है कि कैन आई स्पेंड एटलीस्ट $100 टू एक्वायर वन कस्टमर? द आंसर इज यस। कैन आई स्पेंड $200 टू एक्वायर वन कस्टमर? द आंसर इज यस। कैन आई स्पेंड $300 टू एक्वायर वन कस्टमर? द आंसर इज यस। एंड डैन कैनेडी ये बोलते हैं द बिजनेस हु स्पेंड मोस्ट टू एक्वायर कस्टमर विल विन। तो इस चीज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी करना कंप्लीटली एलटीवी। गाइस कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब कैक का मतलब हमारे होता है टोटल एक्सपेंस टू एक्वायर कस्टमर एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर। सपोज करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 20,000 रुपए के आसपास में, ओके, और आपने 10 सेल करी, मतलब कि आपने टोटल 2 लाख रुपए कंप्लीटली अर्न कर लिए, ओके। अब आपने कम से कम 50,000 रुपए स्पेंड किए थे कंप्लीटली अपने साइड से टू एक्वायर दोज कस्टमर्स, ओके। अब मुझे ये ट्रैक करना है कि मेरा कैक क्या होगा। तो मैंने कितना स्पेंड किया? 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय कंप्लीटली कितना? हमारे 10 से, बिकॉज 10 कस्टमर आए थे। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। तो 20,000 के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैंने 5,000 रुपए कंप्लीट लगाए। मतलब जो मेरा कैक है वो कितना है? 50,000 के कंप्लीट के आसपास में। मतलब कि 15,000 का प्रॉपर क्या है मेरा बेसिकली? वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कंप्लीटली बच रहा है। जो ऐसी बात है वो प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस कंप्लीटली और आएंगे। बट जाहिर सी बात है, माय कैक इज कंप्लीटली 5,000 के आसपास में। बट लेकिन क्या मेरा सीपीएल बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। क्या मेरा कैक बढ़ेगा फ्यूचर में? हाँ, मेरा कैक और सीपीएल दोनों बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को देखना है कि अगर मेरा कैक 6,000 जाता है, 7,000 जाता है, 8,000 जाता है, तो क्या चलेगा? द आंसर इज यस, कंप्लीटली वो चीज प्रॉपर चलेगा। उसमें कोई प्रॉपर इशू वाली बात नहीं है, सिंपल। आई होप दैट आई कंप्लीटली गॉट द पॉइंट दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एलटीवी एंड द कैक का रेशियो, सिंपल। एंड हियर कम्स आवर एडवाइस नंबर 9, which is as make your lead magnet absolutely amazing. So guys, people should feel like how someone can give this for absolutely free. मतलब कोई पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना क्रेजी वैल्यू कैसे दे सकता है? अब आपका लीड मैग्नेट कैन बी ए 1-to-1 कंसल्टेशन, योर लीड मैग्नेट कैन बी ए फ्री वेबिनार, योर लीड मैग्नेट कैन बी एनीथिंग सिंपल, ओके, टू सेल योर प्रोडक्ट्स, टू सेल सर्विसेज। बट आपका लीड मैग्नेट बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए गाइस। लीड मैग्नेट गाइस हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट लीड्स फॉर आवर बिजनेस, ओके। अब जो भी आपका फ्री लीड मैग्नेट होने वाला है टू गेट योर लीड्स, it should be absolutely amazing. तो guys, जो मैं वर्कशॉप करता हूँ, my workshop is kind of a lead magnet symbol, okay? और उस वर्कशॉप को every single times I try, can I make it much better? Can I make it much better? Can I make it much better? And every single time I try to improve the content part of my webinar, simple. तो your lead magnet should be absolutely amazing and people should feel like कि बॉस कैसे ये बंदा इतने सारे वैल्यू फ्री में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस वीडियो, आई होप राइट नाउ गाइस यू गेटिंग दिस फीलिंग राइट नाउ हाउ द हेल इट इज प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अगेन गाइस, हियर कम्स आवर एडवाइस नंबर 10 व्हिच इज नोन एज गाइस फोकस अपॉन वर्ड टू माउथ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, यू नो व्हाट, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आपने बढ़िया सर्विसेज नहीं दी है, और वो जो लोग हैं वो बाहर जाके लोगों को बता रहे हैं कि यार सिड से प्रोडक्ट बाय मत करना बिकॉज उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं। एंड यू आर लाइक कि लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे वर्ड टू माउथ से ज्यादा जो फैलता है वो होता है बैड वर्ड टू माउथ। तो योर फर्स्ट गोल शुड बी टू प्रोवाइड सो मच वैल्यू टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, ताकि वो लोग गुड वर्ड टू माउथ करें। एंड जब भी आप लोग कंप्लीटली उनसे बात करते हो, जब भी प्रॉपर आप लोगों से मिलते हो, आप सिंपल एक चीज बोलो, डू यू हेट मी? हे राज, डू यू हेट मी? बोलेंगे नहीं। Then why are you not recommending other people about my services? Simple. And वो like, अरे sure man, I will recommend to my friend. Simple. Ask for referral. Recommend other people completely. और या फिर सर्विसेज इतनी अच्छी दो that कि लोग completely आपके बारे में बात करें। आप अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाओ that people will gonna talk about you. Simple. Hope that was completely you got the point. So focus upon word to mouth by providing so much value to your existing customer. So अगर these are the 10 advice that मैंने follow करी completely मेरी साइड से in order to generate 21,000 plus leads in 2023 and 35,000 plus leads in 2024. And guys, here is my ask in the video. As I said, ये वीडियो कम से कम 20 मिनट से प्रॉपर कंप्लीट ऊपर की होगी। आपको 20 मिनट वैल्यू मिल रखा है and here is my ask right now completely. Just share this video in just 1 WhatsApp group. If you think this video was valuable, I just want to ask one thing, share this video in just 1 WhatsApp group. And मेरे साइड से आप लोग will gift भी guys. अगर आप right now प्रॉब्लम फेस कर कंप्लीटली to generate high quality leads in your business, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा कंप्लीटली, उस लिंक पे क्लिक करो and register for the workshop right now for absolutely free. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care, have a great day. आप मुझे बताओ सारी एडवाइस में से बेस्ट एडवाइस कौन सी लगी? I will see you next time. तब तक के लिए bye bye, take care, have a great day. Cheers.